Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से आप सबका अभिवादन In करते the हैं। previous two episodes, पिछले 2 भागों में we have seen what is sin, हमने देखा था कि पाप क्या what है, is death, मृत्यु क्या है why should death be the reward of sin. और पाप की मजदूरी मृत्यु क्यों है। We have seen why did Jesus Christ come to this earth. हमने ये भी देखा था कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पे क्यों आए। We have seen why did he shed his blood. हमने ये भी देखा था कि यीशु मसीह ने अपना लहू क्यों बहाया। We have seen that in order for the sins to be erased, it can be done only through the blood of Jesus Christ. और हमने देखा था कि पापों को मिटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा पाप मिटाए जा सकते थे। Because the blood of Jesus Christ is pure and holy. क्योंकि यीशु मसीह का लहू ये बहुत शुद्ध और पवित्र है। Jesus Christ was lowered a little lower than the angels for a little while, but because he showed obedience, he's now crowned with glory of God. हमने ये भी देखा था कि यीशु मसीह को स्वर्गदूतों से थोड़ा कम में रखा था, परंतु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता की वजह से यीशु मसीह को महिमा का मुकुट पहना के स्वर्ग में रखा गया। Because of Jesus Christ's obedience, now he is crowned with glory and honor. क्योंकि यीशु मसीह की आज्ञाकारिता की वजह से यीशु मसीह को महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया गया। He showed obedience till he died. यीशु मसीह ने मृत्यु तक आज्ञाकारिता को दिखाया। Will you be able to show the same obedience to God? क्या आप भी वैसे ही आज्ञाकारी रह सकते हैं परमेश्वर के प्रति? So as I told before, today we are going to see the 3 ways in which Jesus Christ has died. जैसे हमने पिछले भागों में बताया था कि आज हम ये देखने वाले हैं वो 3 तरह जिसमें यीशु मसीह का मृत्यु हुआ। What are those 3 parts of death? वो मृत्यु के 3 भाग क्या है? I'm going to repeat again for the viewers who didn't see it before. मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं देखा। The first part is this. पहला भाग ये है The departure of the Holy Spirit from the spirit of man. पवित्र आत्मा का मनुष्य की आत्मा को छोड़ के निकल जाना। That is the highest level of death. वो उच्च दर्जे की मृत्यु है। The second part of death. दूसरा भाग मृत्यु का यह है Departure of man from the presence of God. मनुष्य का परमेश्वर की उपस्थिति से निकल जाना। That is the second part. ये दूसरा भाग है। The third part of death is this. मृत्यु का तीसरा भाग यह The है departure of the spirit of man from his physical body. मनुष्य की आत्मा का उसके शरीर को छोड़ के जाना। ये तीसरा भाग है So मृत्यु did का। Jesus Christ die the 3 ways? तो क्या यीशु मसीह इन 3 भागों में उनका मृत्यु हुआ? Because the reward of sin is death. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। So in order for your debt to be paid, or in order for your sins to be paid completely, Jesus Christ needs to die completely. आपके पापों का पूरा हिसाब चुकाने के लिए यीशु मसीह को पूरा मरना पड़ा। So let's all open our Bibles to Matthew chapter 26 verse 39. आइए हम हमारा बाइबल खोले मत्ती उसका 26वां अध्याय उसका 39वां वचन। Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it's possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will." यीशु कुछ आगे बढ़े और उन्होंने भूमि पर मुंह के बल गिरकर यह प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। Jesus Christ was shaken in the garden of Gethsemane. गित्सेमी के बगीचे में यीशु मसीह स्फूर्तित हो गए थे। The reason why I am putting up this verse before I go into those 3 parts ये वचन मैं बता रहा हूँ, इसका कारण ये है is because some of you highly intellectual people might be saying, "Oh, he is Jesus Christ, the Son of God. So what is death to him?" हमारे बीच में कुछ अत्यंत बुद्धिमान लोग ये कहते होंगे कि अरे वो तो यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का बेटा है, उसके लिए मृत्यु क्या है? My dear friends, over here, Jesus Christ is not the Son of God, but he's the Son of man. क्या आप जानते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र नहीं, वो मनुष्य का पुत्र है। He is just as scared of death as you are. यीशु मसीह जैसे आप मृत्यु से भयभीत थे, वो उसी तरह यीशु मसीह भी मृत्यु से भयभीत He थे। says, "My Father, if it is possible, remove this burden from me." वो कहते हैं, मेरे पिता, अगर ये मुमकिन है तो मुझसे ये प्याला निकाल दीजिए। And he knows that his Father loves him so much. और वो जानते थे कि उनके पिता उनसे बहुत प्रेम करते हैं। So immediately he says, "Yet not as my will, but as your will be done." तो तुरंत वो ये कहते कि मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूर्ण हो। Even
at that stage, he knew that he was going to be killed. Even over there, Jesus Christ was showing the obedience to God. उस स्थिति में जहाँ पर यीशु मसीह जानते थे कि अभी वो मारे जाने वाले हैं, उस स्थिति में भी यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रति अपनी आज्ञाकारिता को दिखाया। You cannot avoid death if आप you pay death. अगर आप मृत्यु भरते हैं तो भी आप मृत्यु से बच नहीं सकते। Jesus Christ was paying death, his own death. यीशु मसीह अपना स्वयं का मृत्यु की भरपाई कर रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। Jesus needs to die the exact way that a man dies. यीशु मसीह उसी तरह से मर रहे थे जिस तरह से एक मनुष्य की मृत्यु होती That है। means in all the three ways. उसका मतलब है वो तीनों भागों में। So let's look at the first part of his death. तो आइए हम पहले ही भाग देखते हैं यीशु मसीह की मृत्यु का। That is the departure of the Holy Spirit from the spirit of man. वो है कि पवित्र आत्मा का मनुष्य के आत्मा से निकल जाना, That is the highest level of death. जो एक उच्च दर्जे का मृत्यु है। So if we open our Bibles to Matthew chapter 27 verse 45. अगर हम हमारे बाइबल को खोलते हैं मत्ती इसका 27वां अध्याय उसका 45वां वचन। From noon until 3 in the afternoon, darkness came over all the land. In verse 46, but about 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? दोपहर से लेकर 3 बजे तक समस्त पृथ्वी पर अंधेरा छाया रहा। लगभग 3 बजे यीशु ने ऊंची स्वर से पुकारा, एली एली लेमी सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। We see Jesus Christ crying over his Father. हम देखते हैं यहाँ कि यीशु मसीह अपने पिता की ओर पुकार रहे थे। On the cross, he was all alone. उस क्रूस पर वह अकेले थे। He was all alone and he was crying, why did you leave me? He was unable to bear the departure of the Holy Spirit from his body. उस क्रूस पर वो अकेले थे और वो वहां से अपने पिता की ओर पुकार रहे थे कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ा। वह उस समय में पवित्र आत्मा का उनकी आत्मा से निकल जाना सह नहीं पा रहे थे। And he was asking, why did you leave me, my God? और वो ये पूछ रहे थे कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। The reason why he said, why did you leave me is because he was unable to bear the pain of the Holy Spirit leaving his body. यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वह पवित्र आत्मा का जाना सहन नहीं कर पा रहे थे। Jesus Christ was full of the Holy Spirit on the earth. इस पृथ्वी पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, But on the cross, पर उस क्रूस पर on the way to his cross, the Holy Spirit left him because he needs to die. उस क्रूस की ओर यात्रा के दौरान पवित्र आत्मा ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि उन्हें मृत्यु में जाना था। This was the loudest cry. ये एक जोर की पुकार थी। It was not a normal cry, but the loudest cry he ever cried. यह एक सर्वसाधारण पुकार नहीं थी, ये एकदम जोर की पुकार थी जो उन्होंने कभी नहीं बोली। We see that in verse 46. It says, Jesus cried out in a loud voice. हम 46वें अध्याय में देखते हैं, लगभग 3 बजे यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा। You know, it was the voice of death. यह एक मृत्यु की आवाज थी। You know how people cry. You know, it was a loud voice. The voice when somebody dies. यह एक ऊंची स्वर की पुकार थी जब कोई मरता है उस समय की। Have you ever experienced such kind of incident in your life? क्या आपने कभी ऐसे घटना का अनुभव किया है अपने जीवन में? You know, there was one man who was put on fire. क्या आप जानते एक मनुष्य था जिसे जला दिया गया And there was nobody else able to rescue him or save him from that incident. And he was crying out in that loud voice. और उस समय में वहां पर कोई नहीं था जो उसे उसमें से निकाल सके या उसे बचा सके, तो उसने ऊंचे स्वर में पुकार के रोया। I was watching that video and I was not able to control my tears. Tears rolled down my eyes. मैं उस वीडियो को देख रहा था और मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। And if he was dying a physical death, where his spirit was leaving his body, just imagine the cry that Jesus Christ was crying on the cross when the Holy Spirit was leaving him. वह आदमी शारीरिक मृत्यु को अनुभव कर रहा था जहाँ उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ के जा रही थी। आप कल्पना कीजिए यीशु मसीह के बारे में जब पवित्र आत्मा उनकी आत्मा को छोड़ के जा रही थी। That was the first time Jesus Christ ever experienced what loneliness means.
वह पहला समय था जब यीशु मसीह ने अकेलेपन का अनुभव किया। Have you ever experienced loneliness? क्या आपने कभी अकेले होने का अनुभव किया अपने जीवन में? That was what he experienced on the cross. वही चीज़ है जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अनुभव Now किया। let's go to the second part of death. आइए हम मृत्यु के दूसरे भाग की ओर जाते हैं। That is the departure of man from the presence of God. वह है कि परमेश्वर की उपस्थिति से मनुष्य का निकल जाना। Let's all open our Bibles to John chapter 19 verse 28. आइए हम हमारे बाइबल को खोलते हैं यूहन्ना इसका 19वां अध्याय उसका 28वां वचन। We're going to see it through verse 30. हम 28 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। Later, knowing that everything had now been finished, and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. A jar of vinegar was there. So they soaked a sponge in it, but the sponge on a stalk of hyssop plant and lifted it to Jesus' lips. When he had received the drink, Jesus said, it is finished. तब यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्मग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ अम्लरस का एक भरा पात्र रखा हुआ है। उन्होंने उसमें एक पंचोक डुबाया और उसे जूफे के डंडी पर रखकर यीशु के मुंह से लगा दिया। यीशु ने अम्लरस ग्रहण कर कहा, सब पूरा हुआ है, और सिर झुकाकर अपना प्राण त्याग दिया। I want you to concentrate on that last 30th verse, the first part. मैं चाहता हूँ कि आप 30वें अध्याय के पहले भाग की तरफ ध्यान दें। When he received the drink, Jesus said, it is finished. जब उसने अम्ल रस ग्रहण कर लिया तो यीशु मसीह ने कहा कि सब पूरा हो गया। Because that is him leaving from the presence of God. क्योंकि तब वो यीशु मसीह था जो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकल रहा था। Now he couldn't find God in him. और वह परमेश्वर को अपने जीवन में कहीं नहीं देख पा रहा He was था। not able to find himself in the presence of God over there. वो खुद को परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं देख पा रहा He था। was unable to talk to God at that time. उस समय में वो परमेश्वर से बातचीत नहीं कर पा रहे थे। He said, it is finished. और उसने कह दिया कि यह पूरा I हो left चुका your है। presence, O God. उसने कह दिया कि परमेश्वर मैंने तेरी उपस्थिति को छोड़ दिया Now I'm on the way to hell. और अभी मैं नर्क की उस राह पर हूँ। I have lost you. मैंने आपको खो दिया है। You know what? The reason why they put the hyssop, the sponge, and the hyssop plant is because that is like a medication which makes the pain go down. क्या आप जानते हैं उससे पंचोक्त में डुबाकर उसे जूफे की डंडी पर क्यों रखा जाता है? क्योंकि वह एक दवा है जो दर्द को कम करता है। But the pain, the physical pain, was nothing compared to the presence of God leaving him. परंतु शारीरिक वेदना वह कुछ भी नहीं है उस वेदना के तुलना में जो है कि परमेश्वर की उपस्थिति से निकल जाना। Jesus Christ faced the second part of death. इस तरह यीशु मसीह ने मृत्यु के दूसरे भाग को सहा। Now let's go to the third part of it. आइए हम मृत्यु के तीसरे भाग की ओर That जाते हैं। is the departure of the spirit of man from his physical body. वो है कि मनुष्य के शरीर से उसकी आत्मा का निकल जाना। In the same verse, John 19:30, we see when he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. यहाँ हम 30वें अध्याय में देखते हैं कि यीशु ने अम्ल रस ग्रहण कर कहा, सब पूरा हुआ, और सिर झुकाकर अपना प्राण त्याग दिया। My dear friends, मेरे प्रियो, Jesus Christ gave up his spirit. यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को दे दिया। That means his spirit left his physical body. उसका मतलब ये है कि उसकी आत्मा ने उसके शारीरिक शरीर को छोड़ दिया। The same kind of death you and I face on the earth. और उसी तरह का मृत्यु आप और मैं इस पृथ्वी पे झेलेंगे। He gave up his life. उसने अपने जीवन को दे दिया। That means he gave up his life so you can live. इसका अर्थ ये है कि उसने अपना जीवन दे दिया ताकि आप जीवित रहे। Now if you look at the reason why he died, अगर हम इस कारण की ओर देखते हैं कि वह क्यों मरा, he died because of your disobedience.
वो हमारा आपकी अनाज्ञाकारिता की वजह He से। died because of the disobedience that Adam has shown towards God. वो हमारा आदम के उस अनाज्ञाकारिता की वजह से जो उसने परमेश्वर के प्रति दिखाया। Because of one man's disobedience, बस एक मनुष्य के अनाज्ञाकारिता की वजह से another man paid the price. दूसरे मनुष्य ने उस कीमत को चुकाया। You know, it took God Himself coming down to this earth to pay for your disobedience. क्या आप जानते हैं परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पे आए कि वो उस कीमत को चुकाए। Your disobedience is very costly, my dear brother. आपकी अनाज्ञाकारिता बहुत महंगी है मेरे प्रियो। Your disobedience to the laws of God and to God is very expensive. आपकी अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के और बहुत महंगी है। You know, the reason why Jesus Christ was willing to come down to this earth to give up His life for you? क्या आप जानते हैं वो कारण जिसके लिए यीशु मसीह तैयार थे इस पृथ्वी पे आके अपना जीवन आपके लिए देने के लिए? It is because He loves you. वो कारण ये है कि वो आपसे प्रेम करते हैं। He loves you so much, my dear brother. वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। He loves you in such a way वो आपसे इस तरह से प्रेम करते हैं that He gave up His life for you. कि उन्होंने अपने जीवन को आपके लिए दे दिया। You know, the Word of God says, God is love. आप जानते परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। God doesn't possess love, परमेश्वर प्रेम को नहीं रखता है, but God Himself is love. परंतु परमेश्वर स्वयं प्रेम है। And the true meaning of love is this, that He giving Himself for you. और क्या आप जानते हैं प्रेम का असली अर्थ ये है कि वो अपने आप को आपके लिए दे देता है। Today, you might be thinking, oh, I have so many friends in my life. आज आप सोचते होगे कि मेरे जीवन में मेरे बहुत से मित्र हैं, I don't need this God. मुझे इस परमेश्वर की जरूरत नहीं है। I have so many things in my life मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें who हैं are going to help me in my life. जो मुझे मेरे जीवन में हेल्प करेगी, You know, सहायता करेगी। The Bible says, क्या आप जानते हैं बाइबल कहती है a true friend is he सच्चा मित्र वह है who gives up his life for his friend. जो अपने जीवन को अपने मित्र के लिए दे देता है। Can your friend give up his life for you? क्या आपका मित्र आपके लिए अपने जीवन को दे सकता है? Can I put this question in a different way? क्या मैं इस सवाल को एक दूसरे रीति से बोलता हूँ? Can you give up your life for somebody else? क्या आप अपने जीवन को किसी और के लिए दे सकते हैं? My dear brother and sister, मेरे प्रियो, there is nobody in this world who can beat Jesus Christ in this way. इस पृथ्वी पे ऐसा कोई भी नहीं है जो यीशु मसीह को इसमें हरा सकता है। He gave up his life. उसने अपने you. जीवन को दे दिया आपके लिए। He gave up his life so you can live. उसने अपने जीवन को दे दिया ताकि आप जीवित रहें। And he made it in such a way that your disobedience is not going to be seen anymore. और उसने इस तरह से उसको बनाया कि आपकी अनाज्ञाकारिता अभी नहीं दिखेगी। You might think, I'm living a very righteous life. आप ये सोचते हुए कि मैं एक बहुत धार्मिक जीवन जीता हूँ। But do you know, your curses are generational. क्या आप जानते हैं कि आपके श्राप ये पीढ़ियों से आए हुए श्राप है? Do you know that you cannot live a perfect life? क्या आप जानते हैं कि आप एक सिद्ध जीवन नहीं जी सकते? Just question yourself. अपने आप को एक सवाल पूछ के Did देखिए I live a perfect life till now? कि क्या मैं एक सिद्ध जीवन जी रहा हूँ अभी तक? Did I not harm anyone till now? क्या मैंने कभी किसी को वेदना नहीं पहुंचाई? Do you know the word of God says? क्या आप जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या You कहता है? need not rape a woman, but even if you have the intention, a bad intention towards a woman, you have already committed the sin. क्या आप जानते हैं वचन क्या कहता है कि आपको एक स्त्री का रेप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसके बारे में गलत सोचते भी है तो बाइबल के अनुसार आपने वो पाप कर लिया है। The reason why Lucifer was thrown out of the kingdom of God is because of this. लूसीफर को परमेश्वर के राज्य से बाहर फेंका गया इसी कारण की वजह से। He just had the intention. उसके सिर्फ मन में वो बात थी। He had the intention of taking away that throne of God. उसने सिर्फ मन में सोचा था वो परमेश्वर का सिंहासन ले लेने के बारे में। And in God's eyes, that is sin. और परमेश्वर के नजरों में वह पाप है। My dear brother and sister, मेरे भाइयों और बहनों, you might have committed a lot of sins. आपने बहुत सारे पाप इस तरह से कर लिए होंगे। You might have already crossed the threshold limit of whatever you thought was in your mind. आपने वो लिमिट को ऑलरेडी क्रॉस कर लिया होगा। Do you know, even one sin is a big sin. क्या आप जानते हैं केवल एक पाप ये बड़ा पाप है? That's exactly what
Adam and Eve did. यही है वो जो आदम और हवा ने किया। All they did was just disobey God in one instance. उन्होंने सिर्फ इतना किया कि उन्होंने एक घटना में परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। Have you never disobeyed God in any instance? क्या आपने कभी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा? Have you never sinned in your life? क्या आपने कभी अपने जीवन में पाप नहीं किया? If you want your sins to be erased, अगर आप चाहते हैं कि आपके पाप मिटाए जाए, Jesus Christ is the only way, my dear brother. यीशु मसीह ही एक मार्ग है मेरे भाइयों। Jesus Christ is the only way, my dear sister. यीशु मसीह ही एक मार्ग है मेरे बहनों। He is the only one who has forgiven your sins, and He is the only one who has laid down and shed His blood for you. वही एक है जिसने आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया और जिसने अपने आप को दे दिया आपके पापों के My लिए। dear brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, it is high time for you to be forgiven of this. ये महत्व समय है आपके लिए कि आपके पापों को क्षमा किया जाए। Do not let your sins be generational and let them be transcended towards the next generation. आप अपने पापों को कारण मत होने दीजिए कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर ट्रांसफर किए जाए। Don't let your children suffer because of your disobedience to this word. आपके बच्चों को आपके अनाज्ञाकारिता की वजह से सफर ना होने दे। When you obey the word of God जब आप परमेश्वर का वचन मानते हैं and you accept saying, God, I want you into my life, and Jesus Christ, I accept you as my personal Lord and Savior. और जब आप इस बात को ग्रहण करते कि परमेश्वर मुझे तेरी ज़रूरत है और मैं यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। Because the word of the Lord says, those who accept with their mouth saying, Jesus is my Lord, they are saved. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ये अंगीकार करता है कि यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता है वह बचा लिया जाएगा। My dear friends, are you in a state to accept Jesus as your personal Lord and Savior? मेरे प्रियो, क्या आप इस स्थिति में है कि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें? Do you want to receive Jesus Christ as your Savior and taste the real meaning of salvation? क्या आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करके अब उस उद्धार को चखना चाहते हैं? If you're there watching this, अगर आप यहाँ पर है, ये देख रहे हैं, I want you to accept Jesus Christ into your life. मैं चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें। How can I accept Jesus Christ into my life? मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में कैसे ग्रहण कर If सकता that हूँ? is your question, अगर ये आपका सवाल है, all you need to do is आपको एक करना है, just close your eyes अपने आंखों को बंद कीजिए and say, God, और कहिए, परमेश्वर thank you for dying on the cross for me. धन्यवाद मेरे लिए उस क्रूस पर मरने के लिए। Thank you for shedding your blood on the cross of Calvary. धन्यवाद मेरे लिए उस लहू को बहाने के लिए। Thank you for paying the price on behalf of me. धन्यवाद मेरे लिए उस कीमत को चुकाने के लिए। I believe that you came down to this earth. मैं ये विश्वास करता हूँ कि तू उस पृथ्वी पे आया। I believe that you came down to this earth to pay the price for my life. मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप इस पृथ्वी पर मेरे लिए उस कीमत को चुकाने आए। And I believe that through your blood, my sins were erased. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपके लहू के द्वारा मेरे पाप क्षमा कर दिए गए। Thank you, Jesus, for dying on the cross for me. धन्यवाद यीशु उस क्रूस पर मेरे लिए मृत्यु को सहने के Thank लिए। you for shedding your blood on the cross of Calvary. धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने मेरे लिए उस लहू को उस क्रूस पर बहाया। I accept you as my personal Lord and Savior. मैं आज आपको अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता हूँ। Lord, reign over my life. परमेश्वर मेरे जीवन पे प्रभाव कीजिए। Oh, Holy Spirit, I welcome you into my life. पवित्र आत्मा, मैं आपका अपने जीवन में स्वागत करती हूँ। I'm going to change the way I live from now on. मैं अपने जीवन के तौर तरीकों को आज से बदलता हूँ। I'm going to attend church regularly to know and learn your word. मैं आज से चर्च रेगुलरली जाऊंगा आपका वचन सीखने के लिए और आपको अधिकाई से जानने के लिए। I want to have a personal connection with you, Father. मुझे एक स्वाभाविक जीवन आपके साथ जीना है And I want to live a purpose-filled life. और मुझे एक उद्देश्य से भरा हुआ जीवन जीना है। Let me know your purpose, oh Jesus. यीशु मसीह, मुझे आपका उद्देश्य बताइए। Let me know the purpose that you have given to me to spend time on this planet Earth. मुझे उस उद्देश्य को बताइए जो आपने मेरे लिए रखा है इस पृथ्वी पर। My Father, मेरे पिता, once again, thank you for dying on the cross for me और एक बार मेरे लिए उस क्रूस पर अपना प्राण देने के लिए धन्यवाद and erasing my sins. और मेरे पापों को मिटाने के लिए। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से Amen.
आमीन। Amen. My dear friends, मेरे प्रियो, if you have prayed this prayer with me, अगर आपने ये प्रार्थना आज मेरे साथ की है, you have been saved from your sins, आप अपने पापों से बचा लिए गए and you हैं have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. और आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लिया है। Thank you. धन्यवाद। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।